If you stand for a reason, then you must stand like a tree. And if you fall on the ground, then you must fall like a seed that grows to fight again. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I am going to start a new series on the Indian Contract Act. And in this series, I will discuss various important concepts relating to the Indian Contract Act. As we know, if we talk about the contract, that plays an important role in our daily life, in our everyday life, ranging from the insurance policies to the employment contracts. In fact, we enter into many contracts even without any thinking. For example, while buying a movie ticket, while downloading an app, we enter into many contracts. And such contract may be oral or in written agreement without where two or more persons, two or more parties are included. And the parties enter into contract might include the individual people. It may be company, non-profit organizations, or the government agencies. As we know, persons may be natural persons or the artificial person. And whether it may be a natural person or it may be artificial person, every person can enter into a contract. This means whole process of entering into a contract starts with an offer by one party and acceptance by the another party. And an exchange of the consideration is must for entering into a contract. As a contract without consideration is void. Let's take a look at the aspects of the offer and acceptance. If we talk about the proposal or offer, these are the two synonym terms. The entire process of entering into a contract begins with the proposal or an offer made by one party to the another, and the proposal must be accepted to enter into an agreement. If we talk about the certain features of the valid contract, valid offer, these are person making the offer or proposal is referred to as promiser. जो पर्सन ऑफर करता है, जो प्रपोजल देता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है प्रोमिजर. और जिसको ऑफर दिया जाता है, और द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड और द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर इज रेफर टू एज प्रोमिजी. और जिसको ऑफर दिया जा रहा है या जिसके द्वारा उस ऑफर का एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोमिजी या एक्सेप्टी भी कह देते हैं. दिस मीन्स द ऑफरर must express his willingness to do or abstain from doing an act. Only willingness is not adequate or just while entering into a contract. तो दिस मीन्स वहाँ पे विलिंगनेस के साथ साथ उसकी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है. दिस मीन्स ऑफर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. ऑफर कैन आइदर बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. इट कैन बी promise to do an act and can be also be promised to abstain from doing anything. In both are the void offer. यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो ऑफर हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो वहाँ पे एक प्रोमिस किया जाता है टू डू एन एक्ट एंड कैन आल्सो बी प्रोमिस टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट. वहाँ पे या तो किसी कार्य को करने के लिए किया जाएगा या किसी कार्य से दूर करने के लिए कहा जाएगा. और इस तरह की जो मतलब ऑफर जो दी जा रही है दैट इज ए वैलिड ऑफर. वो जो ऑफर है वो एक वैलिड ऑफर कहलाएंगी. एंड देयर मस्ट बी फॉर एन ऑफर देयर मस्ट बी टू पार्टी. जरूरी है कि दो पार्टी कम से कम हो. एंड एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ये जरूरी होता है कि जो प्रपोजल या जो ऑफर है उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए. एंड इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. वहाँ पे जो ऑफर और ऑफरी है या जो प्रोमिजर और प्रोमिजरी है उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए. एंड यहाँ पे जो ऑफर दी जा रही है इट मस्ट बी स्पेसिफिक और जनरल. वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल ऑफर भी हो सकती है. एंड इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट. और किसी भी ऑफर के होने के लिए जरूरी है कि वो सर्टेन या डेफिनेट भी हो. और अपार्ट फ्रॉम दीज कंसिडरेशन, वहाँ पे जो ऑफर दी जा रही है देयर मस्ट बी टू पार्टी. जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे जब भी ऑफर दी जाती है वहाँ पे कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है. मीन्स फॉर एन ऑफर देयर हैव टू बी एटलीस्ट टू पार्टी. टू पार्टीज इज मस्ट. दो या दो से ज्यादा हो सकती है परंतु दो से मतलब दो जरूरी है. अ पर्सन मेकिंग द प्रपोजल टू द अदर पर्सन ऑफरिंग टू इट. जो प्रपोजल दे रहा है वो दूसरे व्यक्ति को उसको ऑफर करेगा नेचुरली. तो वहां पे दो पार्टी कम से कम आप इंक्लूड होगी. एंड ऑल द पर्सन्स आर इंक्लूडेड. दैट इज लीगल पर्सन्स एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन. और उसमें जो पर्सन इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो पार्टीज इंक्लूड की जा रही है वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और वो लीगल पर्सन भी हो सकते हैं. दिस मीन्स एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड. फॉर एन ऑफर इट इज असेंशियल दैट जो प्रपोजल दी जा रही है उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए. सेक्शन 4 of the Indian Contract Act says that
द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द अवेयरनेस ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। जब जब वो व्यक्ति जिसको हम प्रपोजल दे रहे हैं, जिसको हम ऑफर दे रहे हैं, जब उसकी नॉलेज में आ जाए, तभी हम ये कहेंगे कि हमने प्रपोजल किया है या ऑफर दिया है। मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज मस्ट एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज मैंडेटरी एंड ऑफर इज वैलिड। यदि हम ये चाहते हैं कि वो ऑफर वैलिड ऑफर हो, उसके लिए जरूरी है कि वो जो प्रपोजल दिया जा रहा है या ऑफर दिया जा रहा है उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक वो ऑफर वैलिड नहीं हो सकता। इफ इट इज कन्वेड टू द ऑफरी, दिस मीन्स उसको कन्वे किया जाना चाहिए। एंड द कम्युनिकेशन आइदर बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है ऑफर का, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एंड इट कैन बी कम्युनिकेटेड बाय टर्म्स सच एज बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, बाय मैसेंजर, बाय टेलीग्राम। आज के टाइम में आप जानते हैं कि क्योंकि हमारा जो युग है आज के टाइम में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो डेवलप हो चुकी है, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की जाती है, इवन वो वर्ड्स के द्वारा भी हो सकती है, माउथ के द्वारा भी हो सकती है, मैसेज के द्वारा भी हो सकती है, टेलीग्राम के द्वारा भी हो सकती है, व्हाट्सएप के द्वारा भी हो सकती है। देयर मे बी मैनी मीन्स, किसी के द्वारा भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप फॉर अ वैलिड ऑफर। इट इज एसेंशियल दैट वहाँ पे जो ऑफर दी जा रही है उसकी वजह से एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, यदि हम ये चाहते हैं कि वो वैलिड ऑफर हो। एंड ऑफर मस्ट बी सच दैट व्हेन एक्सेप्टेड इट विल रिजल्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई ऑफर हम करते हैं तो यदि उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है सामने वाली पार्टी के द्वारा, तो वहाँ पे उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, मीन्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होना चाहिए। This means a mere social invitation cannot be regarded as offer। भी आपने एक सोशल इन्विटेशन दे दिया तो ये नहीं कि आपने ऑफर दे दिया, बिकॉज इन सच इन्विटेशन इज एक्सेप्टेड। जब तक वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, नेचुरली वो वैलिड ऑफर होगा ही नहीं। तो दिस मीन्स बिकॉज इफ सच एन इन्विटेशन इज एक्सेप्टेड इट विल नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। भाई सीधी बात है कि वहां पे लीगल रिलेशनशिप तो क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। दिस मीन्स इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। जब भी ऑफर दी जाती है वो जरूरी है कि वो सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए, ये नहीं कि वो अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। मीन्स द टर्म ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड क्लियर इन ऑर्डर टू मेक क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यदि हम ये चाहते हैं कि उस ऑफर के द्वारा यदि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हो, उसके लिए जरूरी है कि वो जो ऑफर दी जा रही है वो सर्टेन भी होनी चाहिए, डेफिनेट भी होनी चाहिए। एंड इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल, ये भी जरूरी है कि वहां पे जो ऑफर दी जा रही है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। द स्पेसिफिक ऑफर इज एन ऑफर दैट इज एक्सेप्टेड बाय एनी स्पेसिफिक और पार्टिकुलर पर्सन। यदि कोई ऑफर एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है, दैट मीन्स दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। और बाय एनी ग्रुप, या कोई स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी। इफ वी टॉक अबाउट द जनरल ऑफर, दीज आर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। जनरल ऑफर उस ऑफर को कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है, वहां पे कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन नहीं है। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन एंड सच टाइप ऑफ ऑफर इज नोन एज जनरल ऑफर। तो दीज आर द सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द वैलिड ऑफर। भी कोई भी ऑफर वैलिड कब होगी, इसके लिए सब रिक्वायरमेंट होनी जरूरी थी। इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफर, ऑफर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंसेप्ट क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनके आधार पे हम ऑफर्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं डिजाइन के आधार पर, टाइमिंग के आधार पर, पर्पस के आधार पर। तो यदि हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है कि इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, इट मे बी एक्सप्रेस ऑफर हो, इट मे बी इम्प्लाइड ऑफर। नेचुरली कि एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकती है, इम्प्लाइड ऑफर भी। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब एन ऑफर में बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, स्पोकन और रिटर्न। भी किसी भी एक्सप्रेस वर्ड्स के द्वारा बोल के, लिख कर आप उसको कर सकते हैं ऑफर को। और इफ वी टॉक अबाउट द इम्प्लाइड ऑफर, एन ऑफर में बी ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टीज। नेचुरली कि वहां पे जो पार्टीज है उनकी जो सर्कमस्टांसेस है, उनके जो एक्शंस है, उसके द्वारा भी एक ऑफर क्रिएट हो सकती है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। If we talk about the second type of classification, that may be on general offer of the specific offer। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो जनरल ऑफर होती है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को द्वारा को की जाती है, एक विशेष पार्टी को, पार्टिकुलर व्यक्ति को की जाती है और उसके द्वारा एक्सेप्ट की जानी चाहिए, तब वो जनरल ऑफर ना होकर वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाएगी। परंतु जनरल ऑफर किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है। और जनरल ऑफर इज नॉट मेड टू एन स्पेसिफिक पर्सन, इट इज वन दैट इज मेड बाय द पब्लिक एट लार्ज। भी जो व्यक्ति पब्लिक को की जा रही है वो वहां पे पब्लिक के अंदर कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ ऑफर। जो जनरल ऑफर होता है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है। तो वहां पे कोई विशेष व्यक्ति का नाम होना जरूरी नहीं है।
And apart from this, there may be certain other classification that is maybe of crossover or the counter offer. Crossover और counter offer भी हो सकती है. If we talk about the crossover, the parties make a crossover under the certain circumstances. जब हम crossover की बात करते हैं तो कुछ certain circumstances में की जाती है. It means that both make the same offer at the same time. भाई एग्जैक्ट टाइम पे दोनों तरफ से एक ही ऑफर की जा रही है, एक ही बात कही जा रही है, एक ही चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. हाउएवर इन सर्टेन केसेस द क्रॉस ऑफर विल नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टिंग ऑफ द ऑफर. वहां पे ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको एक्सेप्टेंस का नाम दे दें. इफ वी टॉक अबाउट द काउंटर ऑफर इज एन ऑफर, काउंटर ऑफर इज एन आंसर गिवन टू अ इनिशियल ऑफर. भाई जो शुरू में ऑफर दी गई थी, आपको कोई भी ऑफर दी गई थी, आप उसके आंसर दे रहे हैं और वहां पे जो काउंटर ऑफर है वो उसको रिफ्यूज कर दिया गया और उसको एक दूसरी ऑफर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है. उसे हम कहेंगे काउंटर ऑफर. भाई मान के चलो आपको किसी ने अपनी गाड़ी ऑफर करी 2 लाख रुपए में. आपने कहा मैं 2 लाख रुपए में नहीं, मैं उसको 1.5 लाख रुपए में लूंगा. तो वहां पे जो ओरिजिनल ऑफर थी, अपनी इनिशियल ऑफर थी, वो तो खत्म हो गई उसका आंसर में, और वहां पे एक नई ऑफर रिप्लेस कर दी गई उसके द्वारा. तो दैट इज नोन एज काउंटर ऑफर. तो दिस मीन्स काउंटर ऑफर इज द रिफ्यूजल ऑफ द इनिशियल ऑफर एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर ऑफर. उसको दूसरी ऑफर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है. तो दिस में दीज आर द सर्टेन क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑफर. ये मैंने आपको बताया कुछ ऑफर के क्लासिफिकेशन जब वो हम कर सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द लैप्स एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यदि हम लैप्स या रिवोकेशन ऑफ ऑफर की बात करते हैं तो सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इट. सेक्शन 6 के बारे में बताता है. क्या कहता है कि एन ऑफर लैप्सेस आफ्टर अ डेफिनेट डिफाइंड और रीजनेबल टाइम. भाई जो टाइम उसके लिए दिया गया है, जो टाइम रीजनेबल टाइम है, उसके द्वारा वो जो ऑफर होती है वो अपने आप ही लैप्स हो जाती है. एंड ऑफर लैप्सेस बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द स्पेसिफिक टाइम. नेचुरली कि एक स्पेसिफिक जो आपको ऑफर दी गई है, यदि आपने उससे एक्सेप्ट नहीं किया तो ये नहीं कि वो मतलब कह रहे कि बाय नॉट एक्सेप्टिंग, नेचुरली कि आपने यदि उसको एक्सेप्ट नहीं करा तब भी वो उसको लैप्स कर दिया जाता है, तब भी वो लैप्स हो जाएगी. एंड ऑफर लैप्स इज बाय रिजेक्शन. नेचुरली कि यदि आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा, उसको रिजेक्ट कर दिया, देन आल्सो वी कैन से दैट ऑफर हैज बीन लैप्स्ड. वो लैप्स हो चुकी है. एंड ऑफर लैप्स इज बाय द ऑफरर और द ऑफरी. वहां पे जो ऑफरर के द्वारा जो ऑफर दी जाती है, इवन यदि ऑफरर की ही डेथ हो जाए बाई चांस, जो ऑफर देने वाला व्यक्ति है, यदि उसी की डेथ हो जाए या वो पागल हो जाए जिस वजह इससे पहले कि एक्सेप्टेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दैट ऑफर हैज बीन लैप्स्ड. वो ऑफर लैप्स हो चुकी है. तो दिस मीन्स ऑफर में बी लैप्स्ड बाय द ऑफरर्स डेथ और द ऑफरर्स इंसैनिटी अंटिल द एक्सेप्टेंस. भैया उससे पहले कि उसकी एक्सेप्टेंस होती है, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई है या वो इंसेन हो चुका है. और द ऑफर में भी लैप्स्ड बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी. कई बार क्या होता है, एक सब्सिक्वेंट इलीगलिटी अराइज हो जाती है और या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो जाता है. यदि सब्जेक्ट मैटर ही ना रहे जिसके संबंध में ऑफर की जा रही है, तो नेचुरली तब भी ऑफर लैप्स हो जाएगी. जैसा आप एग्जांपल ले लीजिए, बिहार के अंदर शराबबंदी हुई थी, तो वहां पे जब शराबबंदी नहीं हुई थी तब उससे पहले जो ऑफर की जा रही थी नेचुरली आपको बेचने के लिए, तब तक तो वो भी वैलिड थी. और जैसे ही शराबबंदी हुई वहां पे वो इलीगलिटी क्रिएट हो चुकी है. सब्सिक्वेंट इलीगलिटी की वजह से वो जो ऑफर किए गए थे वो लैप्स हो गए अपने आप ही. या फिर ऐसी कंडीशन में जब आपका सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्शन हो जाए तब भी ऑफर लैप्स हो सकती है. तो दीज आर द सर्टेन केसेस वेयर द ऑफर कैन बी लैप्स्ड. वहां पे ऑफर लैप्स की हो जा सकती है. इफ वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन इट इज कंप्लीट, हम यदि ये बात करें कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो ऑफर होता है उसका कम्युनिकेशन किया जाना जरूरी है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, कब कंप्लीट होगा, इसके बारे में यदि आप बात करते हो तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर व्हेन इट इज कंप्लीट. वो ये बताता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा. इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. जिस व्यक्ति को हमने ऑफर किया है, जिसको हमने प्रपोजल दिया है, यदि वो उसके नॉलेज में आ जाए, नेचुरली वहां पे हम ये कहेंगे कि वो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर था वो कंप्लीट हो गया है. एंड द टाइम ऑफ द रिवोकेशन ऑफ ऑफर यदि हम बात करते हैं, सेक्शन 4 आल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट इट. अ प्रपोजल और ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट. नेचुरली कोई भी ऑफर तुमने जो दी थी आप उसको रिवोक भी कर सकते हैं इससे पहले कि उसकी एक्सेप्टेंस हो. यदि आपने कोई ऑफर दे दी और बाद में आपको महसूस होता है कि मेरे को ये ऑफर नहीं देनी थी, तो आप इससे पहले कि उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हो, उससे पहले आप उसको रिवोक कर सकते हैं अगेंस्ट द प्रपोजर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. यदि हाँ एक बार उसने एक्सेप्टेंस दे दी उस ऑफर के संबंध में, तो नेचुरली आप उसके बाद उसको रिवोक नहीं कर पाएंगे.
इफ वी टॉक अबाउट द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर बाय द ऑफरर, यदि हम ऑफरर की बात करते हैं, ऑफरर कब उसको रिवोक कर सकता है? एंड ऑफर कैन विड्रॉन हिज ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जो जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तब तक आप उसको ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। एंड द बिडर एंड सच बिडर कैन विड्रॉ द ऑफर, कैन रिवोक द ऑफर एट एन ऑक्शन सेल बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड बाय एनी ऑक्शनर। भी नेचुरली कि एक जो बिडर है, जो बोली लगाने वाला व्यक्ति है, यदि उसने किसी चीज की बोली लगाई है, उससे पहले कि यदि कोई ऑक्शनर उससे एक्सेप्ट करे, उससे पहले ही उसको वो रिवोक कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। ऑफर को कब रिवोक किया जा सकता है, ये मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, दैट इज एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो सबसे पहले ऑफर करना जरूरी है, और वो जो ऑफर है वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाना चाहिए। देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर। बट अब जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, नेचुरली कि उसकी एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है ऑफर के द्वारा। तो एक्सेप्टेंस कहेंगे किसे? If we talk about the acceptance, the Indian Contract Act defines the term acceptance in section 2B. ऑफर को डिफाइन किया गया था सेक्शन 2A के अंदर। सेक्शन 2A of the Indian Contract Act defines the term offer. If we talk about section 2B, that defines the term acceptance. Acceptance का मतलब as when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. नेचुरली कि जो ऑफर ने आप ऑफरर ने जो व्यक्ति जिसने ऑफर दिया था, उसने अपनी ऑफर दे दी और वो उसकी नॉलेज में आ गई। और जैसे उसने नॉलेज में आई, यदि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, जिसमें टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट, यदि वो अपनी एसेंट को दे देता, अपनी मंजूरी दे देता उसके संबंध में, और वो ये कहता है कि हाँ मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं मैं, तो दिस मीन्स वी कैन से दैट एक्सेप्टेंस हैज बीन मेड। Thus the proposal when accepted becomes a promise। और जैसे वो प्रपोजल जो ऑफर हमने दी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो दिस मीन प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि कोई भी ऑफर जो तुम देते हो, उससे पहले कि उसकी एक्सेप्टेंस हो, उससे पहले यदि आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये ऑफर मैंने गलत दिया है, तो आप उसे रिवोक कर सकते हैं। बट आफ्टर एक्सेप्टेंस यू कांट रिवोक इट। यदि एक और एक्सेप्टेंस हो जाए तो आप उसे बाद में रिवोक नहीं कर पाएंगे। When the offer is accepted, it becomes a promise। इसका मतलब ये होगा कि जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो एक तरह से प्रॉमिस बन जाएगा जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। If we talk about the types of acceptance, जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस कितने प्रकार की हो सकती है? एक्सेप्टेंस कैन बी expressed acceptance, it may be implied acceptance, और it may be conditional acceptance। कि if we talk about the express acceptance कौन सी होती है? If the acceptance is written or oral, इट बिकम्स एन एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस। पर यदि आपको जो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, यदि वो रिटर्न में है या ओरली है, तो उसको हम कहेंगे एक्सप्रेसली एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट किया गया है। इम्प्लाइड का मतलब इफ द एक्सेप्टेंस इज शोन बाय कंडक्ट और एक्शन ऑफ द पार्टीज, देन इट दस बिकम्स द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। भी जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है वो उसके कंडक्ट के द्वारा, उसके एक्शन के द्वारा की जा रही है, तो हम यही समझेंगे कि वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशनल एक्सेप्टेंस, दैट इज रेफर टू एन acceptance that is made when a person to whom offer is made has accepted, has made, that tells the offerer, वो ये कहता है ऑफरर को कि that he or she is willing to accept the offer। वो ये कहता है कि मैं इस तुम्हारी जो ऑफर है, जो तुमने मुझे ऑफर दिया है, जो तुमने मुझे प्रपोजल दिया है, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। कब तैयार करने के लिए तैयार हूँ? उसके संबंध में कंडीशन बता देता है। क्या बताया मैंने आपको? when a person to whom offer has been made tells the offerer that he or she is willing to accept the offer provided that certain changes are made to the condition of the offer। भी वहां पे उसने कंडीशन रख दी कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन पूरी होगी तभी मैं आपको उसको एक्सेप्ट करूंगा। एंड दिस टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। एंड दिस फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑपरेट्स एज ए काउंटर ऑफर। और यही एक्सेप्टेंस जो है ये एक काउंटर ऑफर के रूप में कार्य करेगी। मीन्स ओरिजिनल आपकी जो ऑफर थी वो तो खत्म हो चुकी है, लैप्स हो चुकी है, और यहाँ पे उसकी जगह एक नई ऑफर ने जन्म ले लिया है, तो इसको हम काउंटर ऑफर भी कह सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, सॉरी काइंड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। इफ वी टॉक अबाउट द लीगल रूल्स एंड कंडीशंस फॉर द एक्सेप्टेंस, यदि हम लीगल रूल्स की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या होना जरूरी है? द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। यहाँ पे जब भी एक्सेप्टेंस दी जाएगी, जो भी हमने ऑफर करी है उसके संबंध में जो भी एक्सेप्टेंस दी जाएगी वो एब्सोल्यूट भी होनी चाहिए और क्वालिफाइड होनी चाहिए। द ऑफरर अप्रूवल कैन नॉट बी कंडीशनल। इस सीधी बात है कि जो ऑफरर का जो अप्रूवल है वो कंडीशनल नहीं हो सकता।
एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी टोल्ड टू द ऑफरर। भी जो एक्सेप्टेंस आप दे रहे हैं वो ऑफरर की नॉलेज में, अब तुमने मैंने क्या कहा था कि ऑफर जब भी नॉलेज में जब तक नहीं आएगी तब तक वो कम्युनिकेट की नहीं मानी जाएगी, वो ऑफर वैलिड ऑफर होगी ही नहीं। और इसी तरह से यदि आप ये कहेंगे कि जो ऑफर आपने की थी, जिसको ऑफर दिया था, यदि वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, वो उसके नॉलेज में आ गया है ऑफरर के, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। तो दिस मीन्स if the acceptance just accepts the offer in the head, भाई सीधी बात है, वो अपने एक दिमाग में ले लेता, भी हमें इसको एक्सेप्ट करता हूं, तब ये थोड़ी कि हमें क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। if the acceptor just accepts the offer in his head and he does not mention, वो अपनी मतलब उसको मेंशन नहीं करता, वो अपनी सोच को मेंशन नहीं करता, the same, he does not mention the same to the offerer, it can't be called as acceptance, तब तक उसको आप acceptance नहीं कर पाएंगे। भाई वैलिड एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगी। दिस मीन्स एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिकमेंडेड इन द फ्लोइंग वे। कैसे वो की जाएगी? एक्सेप्टेंस इज समटाइम्स इज रिक्वायर्ड इन ए प्रेस्क्राइब स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, वहां पे एक स्पेसिफिकली उसकी कम्युनिकेशन की जानी चाहिए। और वो कैसे की जानी चाहिए? क्योंकि जो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक रीजनेबल टाइम में उसकी एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए। कभी ये नहीं कि आज मैंने तुम्हें कोई ऑफर दी और उसके आप साल बाद कह रहे हैं कि हाँ भी मुझे एक्सेप्ट कर, मैं तुम्हारी तो तुमने ऑफर दी थी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसका एक रीजनेबल टाइम होता है जिसके संबंध में आपको एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए। इन ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस इज गिवन, देन वी कैन से दैट एक्सेप्टेंस इज वैलिड एक्सेप्टेंस। तभी हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस हो सकती है। इट इज ए वेरी rule that the offer is always to get acceptance of any time। भाई सीधी बात है कि जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है वो एक टाइम के अंदर, वो वैलिड टाइम के अंदर दी जानी चाहिए। देर आफ्टर द एक्सेप्टेंस डिफाइन द टाइम लिमिट, भी नेचुरली कि यदि वहाँ पे एक टाइम लिमिट दी जा रही है, भी हमें 1 साल के अंदर तुम्हें यदि लेते हो तो ठीक है, नहीं लेते हो तो भैया वो फिर उसका ऑफर का कोई मतलब ही नहीं है। तो दिस मीन्स वो एक्सेप्टेंस उसी टाइम पीरियड के अंदर दी जाएगी, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। एंड द मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये भी आप कह सकते हैं कि यदि आप केवल चुप रह जाते हैं, आपको किसी ने ऑफर दी और आप चुप रह के बस बात खत्म कर देते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक्सेप्टेंस दी है। मीन्स मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इफ द ऑफरी फेल्स टू रिस्पॉन्ड द वर्ड, फेल टू रिस्पॉन्ड टू एन ऑफर मेड टू हिम, हिज साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द एक्सेप्टेंस। उसकी जो साइलेंस है उसको एक्सेप्टेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। हाँ, कुछ एक्सेप्शन इसके संबंध में हो सकती है। It is stated that within 3 weeks of the date on which offer is made, the non-acceptance shall be communicated to the offerer. Otherwise, the silence can be communicated as an acceptance। भाई यदि आप उसको वो कह देते भी कुछ समय के बाद कि भी हाँ मुझे ये चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है, आपको किसी ने कोई सामान भेजा और आप उसे यूज कर रहे हैं बड़े आराम से, और वहाँ पे हम यही समझेंगे कि भी आपने उसके एक्सेप्ट कर लिया है, आप उसके पैसे देने के लिए तैयार हैं। अब भी आप मियर साइलेंस रह के ये नहीं कह सकते कि हाँ जी वो एक्सेप्टेंस है, परंतु यहाँ पे यदि आप नॉन एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे अपनी एक टाइम पीरियड के बाद, नेचुरली तो हम यही समझेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस दी है, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं मियर साइलेंस को वैसे एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते, परंतु इसके संबंध में एक्सेप्शन यही कही जाती है कि जब तक आप नॉन एक्सेप्टेंस नहीं देते और आप चीज़ को रख लेते हैं, तो वहाँ पे हम ये समझा जाएगा कि आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी है। दिस मीन्स when communication of acceptance is complete, यदि हम कहते हैं acceptance कम complete मानी जाएगी, communication of acceptance is complete when it is put in the course of transmission to whom as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। नेचुरली कि एक्सेप्टर ने जो जिसने एक्सेप्ट करनी थी उसने अपनी कम्युनिकेशन, अपनी ट्रांसमिशन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है। उसने अपना लेटर पोस्ट कर दिया या उसने फ़ोन के थ्रू बता दिया, जैसे भी उसने किया, यदि वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाए या उसने उसके संबंध में एक लेटर पोस्ट करा या स्पीड पोस्ट करी, कुछ भी करा, और वो उसके अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, अब वो वापस उसको ले नहीं सकता, दैट इज आउट ऑफ द, मतलब वो मैंने क्या कहा, आउट ऑफ द कंट्रोल, आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। यदि वो एक्सेप्टर के पावर से बाहर हो चुका है, वो उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता चाहते हुए भी, तो नेचुरली कि वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो दिस मीन दैट विल बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एंड द टाइम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बट नॉट आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जैसे मैंने ऑफर के संबंध में कहा था कि जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होती या वो आपकी पावर से बाहर नहीं होती, नेचुरली कि वो एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन जो तुमने की थी उसको रिवोक कर सकते हैं, उसको रिवोक किया जा सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये मैंने आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में बताया है। If we talk about the law relating to the contract, that is governed by Indian Contract Act 1872, and this act came into force
ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। यदि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, संविदा अधिनियम की बात करते हैं, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से जाना जाता है। और ये एक्ट 1 सितंबर 1872 को एग्जिस्टेंस में आया था। And if we talk about the preamble of the Indian Contract Act, it says that it is an act to define, amend certain parts of the law relating to the contract. जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस एक्ट की जो उद्देशिका है वो ये है कि इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। यदि हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में 370 जब से हटी है, तो जो एक्ट हमारे इंडिया के बाकी पार्ट्स पे अप्लीकेबल थे वो आज जम्मू और कश्मीर पे भी अप्लीकेबल है। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले कुछ समय पहले ये इसके अंदर कई सारे ये जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है या पार्टनरशिप एक्ट है ये इसके अंदर इंक्लूड थे, ये इसी का भाग हुआ करते थे, परंतु बाद में इन्हें अलग करके नया एक्ट बना दिया गया था। तो आज के टाइम में यदि हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एक अलग एक्ट है। इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज मोस्टली डीलिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स एज वेल एज द स्पेशल प्रोविजंस। यहाँ पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो भाग आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो भाग है वो जनरल प्रोविजन से डील करता है। तो जनरल प्रिंसिपल्स एंड द रूल्स गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट दीज आर डिविजिबल इंटू टू पार्ट्स। ये दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है जो जनरल प्रोविजन वाला जो जनरल प्रिंसिपल से डील करता है दैट इज सेक्शन 1 to 75 इज डीलिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स। सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जो सेक्शन है वो आपके जनरल प्रिंसिपल्स के डील करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में डील करते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, उसके संबंध में क्या कंडीशन होनी चाहिए और उसको रिवोक करेंगे या उसको कैसे पूरा करेंगे, उसके बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जनरल प्रिंसिपल्स में डील की गई हैं and applies to all the contracts respective to their nature. And this, if we talk about the second part, that is section 124 to 238, आप इसके बीच के जो भाग देखेंगे 76 से लेकर 123 तक वो यहाँ पे रिपील कर दिया गया, उसको एक नया एक्ट कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेल्स ऑफ गुड एक्ट के जो प्रोविजन है वो यहीं से लिए गए हैं। तो जो सेक्शन 76 से लेकर 123 तक थे वो सेक्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो स्पेशल जो सेकंड पार्ट है 124 से लेकर 238 तक वो सेकंड पार्ट डील करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट सेक्शन 124 to 238 डील्स विद सर्टेन स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है, जैसे कि आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। These are the certain special types of contract that is dealt under the second part of the Indian Contract Act, section 124 to 238. And the definition of the Indian Contract Act is defined. Definition of the contract is defined under section 2H of the Indian Contract Act. And it says that an agreement enforceable by the law is a contract. This means to be an enforceable, an agreement must be coupled with the obligation. Means that must be enforceable by the law. Does the contract which is combination of the two elements, यदि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज एग्रीमेंट एंड सेकंड वन इज ऑब्लिगेशन। तो दिस मीन्स इफ यू वांट टू टेक बर्थ एन एग्रीमेंट टू टेक द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि हम ये कहते हैं भी एक एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, उसके लिए जरूरी है कि दैट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ। हेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट the process of proposal or offer by one party and acceptance by the other party is must. And generally it involves the process of negotiation where the parties apply their minds, make offer and acceptance and create a contract. If we talk about the term contract, that is defined under section 2H of the Indian Contract Act. Section 2H of the Indian Contract Act defines the term contract. According to section 2H, contract means an agreement which is enforceable by law is a contract. So we can say that a contract is an agreement between two or more parties to do or to abstain from doing something they decided in exchange for some consideration. They decided in exchange for something. They decided in exchange for something that is known as consideration. This means if we talk about the general principles of the formation of the contract, यदि हम कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, दिस मीन्स देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज मस्ट, फॉर दैट लॉफुल कंसिडरेशन मस्ट बी इंक्लूडेड, एंड ग्रेविटी ऑफ द इंक्लूड पार्टीज, वहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज जो मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज मस्ट, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही है नेचुरली उनकी वो द पार्टीज है मतलब कैपेबल होनी चाहिए,
एंड देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। ये भी जरूरी हो जाता है कि वहाँ पे जो कंसेंट दी जा रही है पार्टीज के द्वारा, कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दैट मस्ट नॉट बी कास्ट बाय रिकॉर्सन, अंडू इन्फ्लुएंस, फोर्स। तो वहाँ पे ये सब जो एलिमेंट्स है वो शामिल नहीं होने चाहिए। दिस मीन्स कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो लीगल होनी चाहिए, उद्देश्य इलीगल नहीं होना चाहिए। एंड द एग्रीमेंट मस्ट बी the agreement must also have the element of certainty, means possibility of the performance, means वो जो एग्रीमेंट है वो सर्टेन एग्रीमेंट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। दैट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म, दैट मस्ट बी कैपेबल टू परफॉर्म्ड। वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको परफॉर्मेंस की जा सकती है, जिसको पूरा किया जा सकता है। यदि वो एग्रीमेंट ही ऐसा है कि जो अनसर्टेन है, जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता, तो वो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। दैट इज वाइड, वो वाइड कहलाएगा। मीन्स इफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, यदि हम इन सब एग्रीमेंट्स की बात करें, यदि ये सब एग्रीमेंट शामिल होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो दिस मीन्स इफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट देन वी कैन से दैट इज एन एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है और नेचुरली वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। If you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.